लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो सकता है ना, क्योंकि सर हम इधर वो एनआईएस डिप्लोमा बच्चों को भी क्लास लेते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हिंदी में ही हम बात करते हैं, इसलिए ऐसे ही कोशिश करते हैं। जी सर, ठीक है सर, फाइन। মৃত্যুঞ্জয় রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে? হ্যাঁ। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়েই আলাপন। আমরা সকলেই উপনীত হয়েছি আমাদের 89তম পর্বে। ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের 89তম পর্বের মুখ্য আলোচক ডক্টর সুধীর সিএস স্যার। যুক্ত হয়েছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার। যুক্ত আছেন আমাদের আলাপনের প্রথম পর্বের মুখ্য আলোচক অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয় সহ শারীরশিক্ষা এবং ক্রীড়াবিজ্ঞান জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমস্ত সুধী বৃন্দদের যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের আলাপনের 89তম পর্ব। এবং এই পর্বের স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর সাহু স্যারকে। স্যার প্লিজ। নমস্কার, গুড ইভিনিং এভরিবডি, শুভ সন্ধ্যা। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়ে আলাপন পশ্চিমবাংলার ঝাড়গ্রাম জেলায় অবস্থিত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের এক বিশেষ নিবেদন আলাপন, যেটা 100 লেকচার সিরিজ। সেই আলাপন নামক ব্যবস্থার আজকের পর্বে উপস্থিত আছেন যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ, সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাগত জানাচ্ছি আলাপনের পূর্ববর্তী বক্তা যারা ছিলেন, যারা আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে, আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে পথ দেখিয়েছেন। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে স্বাগত জানাই। বিশেষ করে স্বাগত জানাই আলাপনের যিনি একজন বিশিষ্ট বক্তা ডক্টর অলোক ব্যানার্জি মহাশয়, এক্স ভাইস চ্যান্সেলর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ওনাকেও বিশেষ করে স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome today's speaker, Dr. Suresh CS. He is working as an assistant professor and head Department of Exercise Physiology, Lakshmi National College of Physical Education, Trivandrum, Kerala. I am very much thankful to you, sir. You are sparing your valuable time for this alapon. সবাইকেই আলাপনের উপস্থিত যে সকল ছাত্রছাত্রী, যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আবার সবাইকেই স্বাগত জানিয়ে এই আলাপনের স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে, যার স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের 89th এপিসোডের আলাপন শুরু হলো। আলাপন সত্যি একটা জার্নি, a 100-week lecture series on physical education, which was associated with Physical Education Foundation of India. Today is the day of 89th episode, and already our respected principals had told Dr. Sudhi CS sir, our respected speaker, already joined. Now, I would like to request Dr. Keshav Chandra Gop sir to introduce our today's resource person to all. Please, sir. नमस्कार। मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करना चाहता हूं इस आलापन का मार्गदर्शक प्रोफेसर अलोक कुमार बनर्जी, फॉर्मर वाइस चांसलर कल्याणी यूनिवर्सिटी।
सर का मार्गदर्शन में आज तक ये 90 एपिसोड में हम सब एकत्रित हुए हैं और इसका कांडारी जो अपना महाविद्यालय का प्रिंसिपल डॉक्टर देवप्रसाद साहू सर को भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर डॉक्टर सुधीर CS सर के बारे में 2-4 शब्द मैं कहेंगे। सर के बारे में कुछ कहने के लिए मौका देने के लिए डॉक्टर मृत्युंजय दास सर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधीर CS who is an assistant professor and head department of exercise physiology of Sai LNCPE Trivandrum is also spearheading the activities of Physical Education Foundation of India in Kerala. He serves as a subject expert in various committees such as Board of Studies, doctoral committees, government committees, and the others. He completed BP and MPE from LNCP with gold medals. Future completed PhD from Kannur University with NET, JRF, and SRF. Formerly served LNIP Guwahati as assistant professor. Currently working as assistant professor, joined LNCP Trivandrum in 2018. सर को इस मंच पे स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आग्रह करता हूं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं शुरू करें सर? प्लीज सर, प्लीज। जी सर। ठीक है सर। पहले सर मैं एक बार शेयर करके देखता हूं सर, आप बोलिए कि वो सही हो रहा है कि नहीं। Visible, sir. Visible, no, sir? Okay. Okay, thank you so much, sir. Professor Alok Banerjee, sir, former Vice Chancellor, Professor Dev Prasad Sahu, sir, Principal, Dr. Keshav Chandra Gop, sir, and Muthijesh, sir, who has invited me to take this session on heart rate-based monitoring of training load, a pragmatic physiological approach. तो at the outset, मैं आप लोगों को मेरा धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि वेस्ट बंगाल जैसे थोड़ा सा केरल से इतना दूर जगह पे हमारा फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज को नहीं है तो हमारा फिजिकल एजुकेशन फ्रेटर्निटी को एम्पावर करने के लिए जो मौका मिला है इसके लिए मैं पहले आप लोगों को मेरा धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। उसके साथ अभी जो ये टॉपिक मैंने चुना है इसीलिए क्योंकि जैसे मेरे से केशव सर ने बोला था कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन बच्चा है उनको छोटा भी हो लेकिन वो टॉपिक सब सही तरह से समझाने से उनका कोई फायदा हो जाए, इसलिए मैंने ये टॉपिक देख के आप लोग ज्यादा डरने का कोई मतलब नहीं है। इसको जितना सरल रूप में प्रस्तुत कर सकता है उससे वैसे मैं करने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि हार्ट रेट हमारा शरीर में जितना मात्रा में हमारा ये दिल धड़कते है उसको हम हार्ट रेट कहा जाता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि आजकल हृदय से संबंधी बहुत सारे से डिसीज भी रहते हैं और जैसे हमारा फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए हम ये हार्ट रेट के एक वेरिएबल करके नहीं है तो एक उसका एक मेजर करके उसको समझाया गया है। इसलिए मैं इधर आपको हार्ट रेट क्या होता है और हार्ट बीट क्या होता है उसमें क्या फर्क होता है इसी चीजों को पहले एक उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो पहले देख लेते हैं कि हार्ट बीट नहीं तो हृदय स्पंद वो क्या होते हैं। आपको पता है कि हमारा जो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होते हैं यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, उसका कर्म हमारा शरीर में है कि खून को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद जो भी हमारा शरीर में ऑक्सीजन को चाहिए और उसके साथ जो भी हमने खाया हुआ है उससे जो मिला हुआ न्यूट्रिएंट है, जैसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, उनको वहां पहुंचाना। वो उसके बाद जहां हम ये यूज करने के बाद ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट्स उसको मसल लेनी है, ये तो कोई भी शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो यूज करने के बाद जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वापस लेके लाके हमारा शरीर से बाहर निकालना, ये कार्यक्रम करने वाला सिस्टम को नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम को हम हमारा शरीर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अभी देखते वक्त क्यों इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखते इसमें क्या क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाया हुआ है हमारा हृदय और जो ब्लड वेसल्स उसके साथ, तो इसलिए कार्डियो का मतलब है हृदय और वास्कुलेचर नहीं तो वास्कुलर उसका मतलब है ब्लड वेसल्स। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम को देखते वक्त उसमें जो स्ट्रक्चर्स नहीं तो उसका जो एनाटमी उसको देखे हुए नहीं तो उसको इंपॉर्टेंस देखे हुए इसको कहा गया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अभी इसको सेम सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम को भी कहा जाता है। उसका रीजन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसका जो फंक्शन होते क्या, जैसे मैंने बोला था जो हम सांस लेते वक्त बहुत सारे गैस हमारा लंग्स के अंदर भरते हैं और लंग्स से ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा खून पे। तो खून में हमारा हीमोग्लोबिन करके एक पिगमेंट है, उसके साथ जुड़ने के बाद हीमोग्लोबिन इसको चारों तरफ सर्कुलेट कर जाएंगे। वैसे ही जो भी हमने खाना खाया है वो हमारा ईसोफेगस से स्टमक पहुंच जाएंगे, स्टमक से वो इंटेस्टाइन पहुंच जाएंगे, वहां से जो अब्सॉर्ब होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स भी हमने खा लिया है वो भी हमारा खून के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी खून का क्या ड्यूटी है, जो हमारा स्टमक से आया है और हमारा जो लंग्स से आया है उसको जो हमारा शरीर के जितना भी दूर में रहने वाला जो भी मसल भी हो, चाहे हमारा जो काफ मसल हो, वहां तक पहुंचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, ब्लड नहीं यानी खून ही उसको लेके वहां जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है और वहां डिलीवर करना है, नहीं है तो दे देना है। तो ये काम है सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम को देके नहीं है तो उसका जो फंक्शन है उसका एम्फसाइज करके नहीं है तो उसको इंपॉर्टेंस देके इसको बुलाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक ही सिस्टम ही होता है जहां हमारा हृदय और ब्लड वेसल्स रहते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं है तो फंक्शन देके इसको दो दो तरह के एड्रेस किया गया है। एक तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर की वजह से उसको बोला जाता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और जो उसका फंक्शन है उसको देख के हम बोला जाता है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोनों का कर्म क्या होता है, कर्म ये है कि उसको जो गैसेस और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डिलीवर करना और जो आम वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको वापस लेके बाहर करा देना। अभी इसका इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हृदय। हृदय क्या करने वाला है, हृदय इसको पंपिंग करके जो ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं उसको पंपिंग करके चलाते हैं। जैसे हमने देखे वक्त हमारा नल में जो हमारा घर में जो पंपिंग सिस्टम होते हैं जहां एक टैंक के अंदर पानी रहते हैं उसको एक लूप में नहीं तो एक पाइप के रूप में बहुत सारे पाइपिंग रहते हैं और जहां जो मोटर चलाते वक्त पंपिंग होते इसके वजह से पानी सर्कुलेट हो जाते हैं। जैसे जो पंप का काम करने वाला है हमारा शरीर में हृदय, इसलिए सर्कुलेशन को शुरू करने वाला हमारा हृदय होते हैं। अभी हृदय का स्पेशलिटी रहते तो आपको पता चल जाते है कि हृदय धड़कते, तो उसको हम बोलना वाला वर्ड है कि हृदय स्पंदन। तो एक हर बार जो हार्ट बीट होते उसको आप देख सकता है कि बीटिंग कैसे होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन भी रहते हैं और रिलैक्सेशन भी रहते हैं। मतलब हार्ट छोटा भी होते हैं, जब हार्ट छोटा होते हैं इसके अंदर जो भरा हुआ ब्लड वो बाहर निकलेंगे
और जब वो रिलैक्स करते हैं जो बाहर से ब्लड फिर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का वो जो सिस्टम यानी तो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको हम हार्ट बीट कहा जाता है। तो हर बार जब आप आपके हृदय पे हाथ लगा के देखते वक्त, चेस्ट पे हाथ लगा के देखते वक्त आपको देख सकता है कि हृदय इसे धड़कते हैं। तो हर बार जब हृदय धड़कते हैं नहीं तो हृदय स्पंदन होते, हर बार क्या होता, दोनों चीजें होते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता, उसके बाद हार्ट रिलैक्स भी हो जाता है। तो ये दोनों को मिलके हम हार्ट बीट कहा जाता है। अभी हमारा आज का जो विषय है उसका है नाम है हार्ट रेट। और हार्ट रेट क्या होता है और हार्ट रेट और हार्ट बीट के बीच में क्या फर्क है। हार्ट रेट होते कि रेट क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, मतलब कितना बार, इसका जो कितना बार होने का वो जो प्रक्रिया है उसको हम हार्ट रेट कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं ना रन रेट क्या होते हैं, मतलब कितना रन हो गया। वैसे तो 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार हृदय स्पंदन करते हैं उसका जो मात्रा है, नहीं तो उसका जो रेट है, उसका जो नंबर है, अंक है, उसको हम हार्ट बीट, हार्ट रेट कहा जाता है। तो इसीलिए 1 मिनट में कितना बार हमारा हृदय स्पंदन होते उसको हम हार्ट रेट कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो उसको हृदय दर भी कहा जाता है, हिंदी में हृदय दर भी कहा जाता है। तो इसलिए हार्ट रेट का हमारा शरीर में, अभी आपको पता चला कि हार्ट रेट में हमारा शरीर में हार्ट रेट का इंपॉर्टेंस है कि ब्लड को सर्कुलेट करने रहना। तो नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल अडल्ट मेल जो मजबूत हो उन लोगों का जो 18 साल का उम्र का एक मर्द का देखते वक्त क्या होता है, लगभग उसका 62 बीट्स पर मिनट आपको देखते वक्त हार्ट रेट मेंशन करते हैं सब समय बीपीएम करके। स्लाइड में भी आपको देख सकता है ये लिखा है 72 बीपीएम। अभी बीपीएम क्या होते हैं, बीट्स पर मिनट, यानी हर मिनट में हमारा बीट्स कितना होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ प्लीज। पीपीटी चेंज नहीं हो रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ओके है ठीक है, अब अभी हो रहा है ना। ओके ओके, अभी हमारा जैसे अभी हमने बोल दिया कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होते हैं। अभी नॉर्मल हार्ट रेट होते कि 72 बीट्स पर मिनट। और आपने भी देखा होगा कि अपने आप जब हमारा हार्ट रेट देखते वक्त लगभग 72 नहीं होता, कभी कभी वो कम भी हो जाता है, कभी कभी वो ज्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम होता है तो उसको हम ब्राडीकार्डिया कहा जाता है, नहीं तो ब्राडी अर्दिमिया। क्या है ब्राडीकार्डिया का मतलब है जैसे हमारा जो हृदय का मैंने बोला कि 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है, उससे कम होगा तो इसे हमारा शरीर में कोई फर्क होता, लेकिन 60 बीट्स पर मिनट के कम होता है तो उसको हम कहा जाता है ब्राडीकार्डिया, और उसको ब्राडी अर्दिमिया भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे और एक सिचुएशन रहते हैं जिसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा भी होता, जिसका हार्ट रेट लगभग 100 तक पहुंच जाता, उसको हम टकीकार्डिया भी कहा जाता है। तो टकीकार्डिया मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट रेट, और ब्राडीकार्डिया क्या होता है, अबनॉर्मल डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो दोनों का एक मतलब है, अगर आपका नॉर्मल नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होता। अभी एक्सरसाइज करने से हमारा हृदय का साइज बढ़ जाता है, तो हृदय का साइज बढ़ जाने से क्या होता है, रस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाएंगे। तो ये एक हमारा रेसिस्टेंस एंड्योरेंस ट्रेनिंग का, नहीं है तो स्टैमिना के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसका वजह से क्या होगा, हमारा हृदय का साइज बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से हमारा हृदय का जो रस्टिंग हार्ट रेट वो भी कम हो जाएगा। ये तो उसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्राडीकार्डिया कहा जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा हृदय का साइज बढ़ गया, इसकी वजह से हमारा हृदय का जो बीट्स है, हृदय स्पंदन है, वो कम हो गया। ठीक है, ये दूसरा भी हो सकता है किसी डिसीज की वजह से, उसका कोई तकलीफ हुआ है, इसकी वजह से क्या हो गया, उसका हृदय का प्रवर्तन कम हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि
हमारा कोई डिसीज के वजह से भी ब्राडिकार्डिया हो सकता है, उसको हम कहा जाता है पैथोलॉजिकल ब्राडिकार्डिया। पैथोलॉजिकल मतलब कोई डिसीज के वजह से, एक्सरसाइज करने से होता है, जो उसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस ब्राडिकार्डिया कहा जाता है। अभी हमें पता है कि जब हम नॉर्मल बैठा है, वहां से जाके कोई एक्सरसाइज करने से क्या होता, हमारा शरीर का जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी चाहते है, और नहीं है तो हमारा जो ऑक्सीजन का चाहते है, वो सब बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाएंगे तो हमें ज्यादा मात्रा में इसको डिलीवर करना पड़ता है। तो उसको ज्यादा मात्रा में डिलीवर करने के लिए क्या करना है, हमारा जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। वो बढ़ाने से क्या होगा, जितना भी जो सांस लेते उसका मात्रा भी हमारा शरीर में बढ़ जाएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन भी आ जाएंगे और उसको तेज से रोटेट भी कर सकता है। तो इसलिए हार्ट रेट बढ़ाएगा तो उसका मतलब है सीधा हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाते हैं, और हमारा मसल में जितना भी जो जरूरत पड़ता है उसको हम डिलीवर कर सकता है। अभी देखते वक्त हार्ट रेट क्यों हम एक्सरसाइज करते वक्त क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हमारा शरीर में जो हार्ट रेट होते हैं वो इंक्रीज, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हार्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब वो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, उसका काम है जो धड़कना, अगर वो धड़कना का जो मात्रा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का जो परिसंचरण रहते वो भी बढ़ जाएगा। तो हमारा जो एक्सरसाइज करते वक्त मसल में जो ज्यादा मांग आता है, नहीं तो हमारा जो चाहत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए एक ही तरीका है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होना। इसलिए अगर आप देखते वक्त आपको पता चल जाएगा, आप सुबह उठने से आप जो लेटते वक्त आपका जो हृदय का जो हार्ट रेट होगा बहुत कम रहेंगे, उसको हम रेस्टिंग हार्ट रेट भी कहा जाता है। उसके बाद वहां से उड़ के आपने 3-4 स्टेप उधर उधर चला गया, उसके बाद आपको देखते वक्त क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ गया। तो आपका जो कमरा से आप थोड़ा बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा आपने जॉगिंग कर दिया, वो जॉगिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हार्ट रेट और बढ़ गया, और थोड़ा सा दौड़ने के बाद, नहीं तो खेलने के बाद और देखते वक्त क्या होगा, आपका हार्ट रेट ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो उसका मतलब है जितना हमारा जो मसल्स को कोई एनर्जी का डिमांड रहते हैं, उसके वजह से हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसके जुड़ते वक्त और एक कंसेप्ट है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, जैसे हमने अभी हार्ट रेट के बारे में बोला, 1 मिनट में कितना बार हमारा हार्ट बीट करते हैं उसको हम हार्ट रेट कहा जाता है। ऐसे ही 1 मिनट में जितना हमारा खून का जो सर्कुलेशन हो जाते हैं उसको हम कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। 1 मिनट में जितना मात्रा खून हमारा शरीर में सर्कुलेट हो जाते हैं उसको हम कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। तो हार्ट रेट इंक्रीज होने से मतलब वो सर्कुलेशन ज्यादा होते हैं, हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है हार्ट रेट बढ़ने से सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें हार्ट रेट, हमारा शरीर का जो भी इंटेंसिटी हो उसको मॉनिटर करने का एक मेजर करके यूज कर सकता है। अगर आपको इंटेंसिटी देखना है तो क्या देखना है, आपका शरीर का हार्ट रेट देखना। अगर जितना आपने प्रयास कर रहा है, कोई एफर्ट के लिए प्रयास कर रहा है, वो प्रयास ज्यादा है तो आपका मसल का जो रिक्वायरमेंट डिमांड वो भी ज्यादा होगा, उसके साथ साथ हमारा हार्ट रेट भी ज्यादा होगा। इसलिए दिस इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल। नीचे हमने लिखा है हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ गया है। नहीं तो ऐसे भी देख सकता है, अगर आप कोई काम करते वक्त अगर आपका हार्ट रेट कम रहते तो मतलब है आप वो काम ज्यादा प्रयास देके नहीं है तो ज्यादा इंटेंसिटी देके नहीं कर रहा है। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए तो क्या करना है, खाली आपका हार्ट रेट देख लीजिएगा। अगर हार्ट रेट बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब है आपका इंटेंसिटी भी बढ़ जाते हैं। अभी ट्रेनिंग में हम हार्ट रेट को कैसे यूज करना चाहिए, जैसे हमने बोला
अगर आप कोई वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट हो, नहीं है तो एथलेटिक्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आपने सीखा है कि उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, जिसमें हम बोलते हैं कि प्रोग्रेशन ऑफ लोड, मतलब लोड को कैसे आगे बढ़ाना, नहीं तो कैसे उसको ज्यादा कम करना। वो कम करने से क्या होगा, हमारा लोड को प्रॉपर तरीके से हमें कोई हमारा जो ट्रेनिंग का जो गोल है उसको अचीव कर सकता है। अगर आपको कोई बंदा को एंड्योरेंस का बढ़ाव करना चाहिए तो क्या करना है, ऐसे कोई इंटेंसिटी लोड चीजें लेना चाहिए। अब इसको मॉनिटर करने के लिए हमें एक तरीका है हमारा हार्ट रेट को देख लेना। तो अभी इंटेंसिटी क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला इंटेंसिटी हमारा जो भी टास्क दिया हो, जो भी काम दिया हो, वो कितना प्रयास से आप कर रहे हैं उसको हम इंटेंसिटी कहा जाता है। तो देख लीजिए, जैसे मैंने बोला, अब आप ग्राउंड में आने के बाद स्ट्रेचिंग करते होंगे, वार्म अप करते होंगे। वार्म अप करते वक्त आपका जो स्ट्रेचिंग करते वक्त जो हमारा हार्ट रेट रहते वो कम रहेगा, लगभग 60 to 70 रहेगा। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपने थोड़ा जॉगिंग करना शुरू किया, तो जॉगिंग करते वक्त आपका इंटेंसिटी फिर बढ़ जाते हैं, उसके साथ हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। स्प्रिंट करते वक्त फिर बढ़ जाते हैं। जो एक्चुअली आप ट्रेनिंग करते हो तब भी आपका हार्ट रेट बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए हार्ट रेट ही हमारा इंटेंसिटी का एक मॉनिटरिंग करने के लिए एक तरीका है। तो इसलिए प्रॉपरली आपका कोई ट्रेनिंग का जो एम रहते हैं, नहीं है तो गोल रहते हैं, तो इसलिए क्या करना है, हार्ट रेट को थोड़ा सा सही तरह से मॉनिटर करते ही देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपका पास ट्रेनिंग के लिए आया है और उसको वो बोलते हैं कि मेरे को मेरा एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो हम देखते हो क्या करना है, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए पहले हम उसका बहुत सारे पैरामीटर्स निकालना चाहिए। उसको लेके हम पता करना चाहिए कि इसको कितना लोड, नहीं तो कितना इंटेंसिटी में उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। खाली ऐसे नहीं होते कि आप उसको बोलते हैं एंड्योरेंस बढ़ाने का एक तरीका है स्लो कंटिन्यूस रनिंग करना। आप जाओ स्लो कंटिन्यूस रनिंग करो, खाली ऐसे स्लो कंटिन्यूस रनिंग करने से किसी का एंड्योरेंस नहीं बढ़ जाता। हमें देखना चाहिए इसको कितना तेज, कितना ड्यूरेशन, कितना रस देके, कितना बार ये स्लो एंड्योरेंस देना चाहिए ताकि उसका एंड्योरेंस बढ़ जाए। तो ऐसी चीजों को हम लोड पैरामीटर्स कहा जाता है कि जितना वॉल्यूम होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए। ऐसी चीजों को भी थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेगा तो ही हमारा प्रॉपर इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। तो इसको देने के लिए हमें हार्ट रेट का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। अभी हार्ट रेट को हम ट्रेनिंग के लिए कैसे यूज करना चाहिए, तो देखते वक्त इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है रस्टिंग हार्ट रेट। अभी रस्टिंग हार्ट रेट क्या होते हैं, जब हम मैक्सिमम रस्टिंग सिचुएशन में बैठा हो तब जो हमारा हार्ट रेट जो दिखता है उसको हम रस्टिंग हार्ट रेट कहा जाता है। लेमन्स लैंग्वेज में, नहीं तो आम आदमी के लैंग्वेज में यही रस्टिंग हार्ट रेट है। जैसे हो अभी ये जो चित्र में दिखाया है, जैसे हम जब लेटते हो तभी हमारा शरीर, स्लाइड नहीं आया, फास्ट स्लाइड में अभी भी नहीं आया, नहीं आया सर। एक सेकंड। हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, ये भी नहीं आया था, नहीं है, कोई नहीं आया। अरे भाई सर, जब भी ऐसे होते हैं ना आप थोड़ा सा इंटरफियर करना सर। सर एक बार किए थे ये आया था सर। now it is visible now sir. ओके, जो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तब नहीं आते ना सर। अभी एक बार बोलिए सर, ये देखते हैं सर, ये how to use a heart rate for training. हाँ ओके सर, ओके। सो हार्ट रेट का बहुत सारे से कॉन्सेप्ट्स है। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि रस्टिंग हार्ट रेट। तो रस्टिंग हार्ट रेट क्या होते हैं ना, जैसे हमारा शरीर जितना भी कंफर्ट में रहते हैं, नहीं तो इतना भी रस्टिंग पोजीशन में रहते हो, तब जो हमारा हृदय का कितना बार वो धड़कते हैं, नहीं तो कितना बार हृदय स्पंदन होते हैं, इसको हम रस्टिंग हार्ट रेट कहा जाता है। जैसे कुछ लोगों का ऐसे भी होगा कि मैं ऐसे ही सर लेटता हूं फिर भी मेरा हार्ट रेट 72 रहते हैं, और किसी का ऐसे होता है कि सर मेरा खाली 50-80 होते हैं।
तो ऐसे फर्क भी हो जाता, क्योंकि हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगा तो उसका मतलब है हमारा हृदय थोड़ा सा एफिशिएंट फंक्शनिंग करते हैं। तो जैसे हमारा जो लॉन्ग एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व करने वाला है, उन लोगों का हृदय का जो साइज थोड़ा ज्यादा होंगे, मतलब उसका जो हृदय चेम्बर साइज है वो ज्यादा होंगे। वो चेम्बर साइज ज्यादा होने से क्या होता है, जितना जो ब्लड सर्कुलेट होना है उसको कमी हार्ट बीट में मैनेज हो जाता है। जैसे देख लीजिए, अगर मेरा शरीर को रस्टिंग, हर व्यक्तियों का शरीर को रस्टिंग सिचुएशन में एवरेज खाली 5 लीटर का ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए। जो भी हो, जो ट्रेन्ड हो अनट्रेन्ड हो, सबका शरीर को खाली 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए। अगर मेरा हार्ट एक छोटा हार्ट है तो क्या होगा, वो 72 बीट्स चाहिए, 72 बार वो हार्ट बीट करने से ही क्या होगा, ये 5 लीटर सर्कुलेट हो जाता है। अगर किसी और व्यक्ति का हृदय थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, सेम 5 लीटर को सर्कुलेट करने के लिए 72 बार उसको धड़कने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। कम मात्रा में, कम रेपिटेशन में क्या होगा, ये 5 लीटर पहुंच जाता। इसीलिए जिस व्यक्तियों का हृदय का साइज बड़ा हो उसको कमी मात्रा में हमारा 5 लीटर अचीव कर सकता है। इसीलिए किसी व्यक्तियों का हार्ट रेट कमी है तो उसका मतलब है उसका हृदय का साइज बड़ा है। तो यूजुअली हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसको हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही उसको लेटते हम उसको चेक करते हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या होता है, जो पहला दिन में ही हम उसको बोल देंगे कि कल हमारा हार्ट रेट का चेकिंग होने वाला है, इसलिए सुबह उठते ही अलार्म सेट करना, अलार्म सेट करके सुबह उठते ही मैं आ जाऊंगा आपका देखने के लिए। तो उसके पास जाके हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा चेक करेंगे। तो कैसे चेक कर रहे हैं, हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट सुपे नहीं है तो हम लेटते वक्त ऊपर देखते, लेटते वक्त हम चेक करने वाला है हमारा जो हाथ के साइड में जो रेडियल आर्टरी, जो जैसे हमारा चित्र में दिखाया है, जैसे हमारा रेडियल आर्टरी में देख के 1 मिनट के लिए हम उसका जो पल्स होते हैं उसको हम चेक करेंगे। 1 मिनट में 72 बार नहीं है तो उसके कम होगा, उसको थोड़ा नोट करके रहेंगे, उसको हम रेस्टिंग हार्ट रेट कहा जाता है। ठीक है, अभी जो रेस्टिंग हार्ट रेट का एक चीज है, आप देखते हो क्यों ये बोलते हैं कि आप लेटना ही है, लेटेगा तो हमारा हृदय ज्यादातर एंटी ग्रेविटी में ज्यादा काम नहीं करते, क्योंकि जब हम बैठते हैं आपको पता है कि हमारा हृदय के जो चेस्ट लेवल है उसके ऊपर भी हमारा सिर सब है और नीचे भी बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो हृदय को नीचे तरफ, हमारे लोअर बॉडी की तरफ ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा तो स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि वो टुवर्ड्स ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ नहीं है, तो भूमि का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहते हैं उसके तरफ घूम जाते हैं, इसलिए कोई ज्यादा तो एफर्ट नहीं है। लेकिन जब हमारे चेस्ट के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं उस तरफ ब्लड को सप्लाई करने के लिए एंटी ग्रेविटी नहीं तो ग्रेविटी के ऑपोजिट में पंप करना पड़ेगा, जहां बहुत मेहनत रहते हैं। इसलिए कोई बैठेगा नहीं है तो खड़ा होके रहेगा तो क्या होगा, वहां हमारा हृदय का एफर्ट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पंपिंग एंटी ग्रेविटी करना पड़ते हैं। लेकिन कोई लेटते वक्त क्या होता है, वो एंटी ग्रेविटी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, हमारा हृदय एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में पंपिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये फ्लैट हो गया है। इसलिए सब लोग बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट देखना है तो आप लेट के देखिएगा, तब तो हमें हृदय का सही हार्ट रेट मिल जाएगा। और ट्रेनिंग करने से क्या होता है, ट्रेनिंग करते करते हमारा हृदय का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाने से हमारा हृदय का जो रेट है नहीं तो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। अभी हमने सीखा था जो रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है। अभी एक चीज होते है जो हमारा मैक्सिमल हार्ट रेट कितना होता है। अभी मैक्सिमल हार्ट रेट जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट करते वक्त तब हमारा हृदय कितना बार बीटिंग करते उसको हम मैक्सिमल हार्ट रेट कहा जाता है।
नहीं है तो एक व्यक्ति को कोई एक्सरसाइज करने के समय मैक्सिमम कितना हार्ट रेट तक पहुंच सकता है उसको हम मैक्सिमल हार्ट रेट कहा जाता है। देख लीजिए, अभी मैंने कोई व्यक्ति को बुला के बोल रहे हैं कि आप स्प्रिंट करो, 100 मीटर स्प्रिंटिंग करो आपका मैक्सिमम स्पीड में, तो वो इतना तेज दौड़ते हैं। तो तेज दौड़ने के बाद हम उसको हार्ट रेट देगा तो पता चल जाएगा इतना इन्होंने उसका मैक्सिमम एफर्ट डाला, तब उसका जो हार्ट रेट दिखाता है उसको हम मैक्सिमल हार्ट रेट कहा जाता है। ठीक है, अभी आप पूछते होंगे सर वो दौड़ने के बाद हम जाके देखते हो क्या होगा, शायद वो दौड़ने के बाद देखते इसलिए दौड़ने के बाद इंटेंसिटी कम हो गया, दौड़ते वक्त उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी था, लेकिन वो दौड़ने के बाद वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप जाके देखेगा तो उसका मैक्सिमल नहीं रहते, तो उसको कैसे मैक्सिमल हार्ट रेट कहा जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमल हार्ट रेट को एक्सरसाइज करते वक्त जाके हम पल्स लेके देखना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट आया है जहां हम जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो हमारा जो हार्ट रेट मॉनिटर पोलार का भी होते हैं, बहुत सारे कंपनी के होते हैं, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर जीपीएस रख के क्या करते हैं उससे यूज करके हम रियल टाइम डेटा को मैक्सिमम हार्ट रेट देख सकता है। जैसे हो गया हमारा इधर फुटबॉल जब बच्चे खेलते हैं उसको एक चेस्ट में एक स्ट्रैप जैसे जीपीएस को फिक्स करके देखते हैं, और मेरा लैपटॉप में देख के बैठेगा तो क्या होगा उसका जितना भी जो हार्ट रेट हो रहा है एक्सरसाइज करते वक्त कितना भी हो रहा है वो मेरे को मेरा लैपटॉप में मॉनिटर कर सकता है, तो वो रियल टाइम डेटा हो गया। लेकिन सब जगह पे ये फैसिलिटी नहीं रहेगा, तब भी हमें क्या करना चाहिए, इसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसके लिए 1960s में एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया था, वो साइंटिस्ट का नाम है कर्वोनेन। तो ये एक तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारा कोई व्यक्ति का मैक्सिमल हार्ट रेट एस्टिमेट करने के लिए, नहीं तो देखने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, वो जो नीचे दिया हुआ है कि मैक्सिमल हार्ट रेट यानी एमएचआर एस्टिमेट करने के लिए क्या करना है, अपना उम्र 220 करके एक कांस्टेंट है उससे कम करना। सो 220 माइनस अपना एज, वो देखते वक्त हमें पता चल जाएगा कि आपको कितना मात्रा में नहीं है तो कितना तक हमें एक्सरसाइज कर सकता है। अभी देख लीजिएगा 20 साल उम्र का कोई बच्चा आपके पास आ गया है तो क्या करना चाहिए, आप एक्सरसाइज करते वक्त हमें ये पता करना है मैक्सिमल हार्ट रेट कितना होगा। तो जैसे भी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 220 उससे 20 कम करना तब मिलेगा 200। इसका मतलब है ये बच्चों को ट्रेनिंग करते वक्त मैक्सिमम उसको 200 तक उसका हार्ट रेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अभी इसको देख के हम हमारा ट्रेनिंग जोन एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो वो एस्टिमेट करने के बाद आप लोगों को एक डाउट रहेगा, सर आप जो एस्टिमेट करने के लिए बोलते उसको क्यों एस्टिमेट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये स्लाइड में देखेगा तो उसमें दिया है, अभी सोन करके दिया है, उसके साथ साथ एफर्ट भी करके दिया है, और वो सोन में करेगा तो अपना क्या बेनिफिट रहेगा। तो अभी हम जो मैक्सिमल हार्ट रेट दिया है उसके हिसाब से हम पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि इसका कितना हार्ट रेट होना चाहिए। तो मैक्सिमम जिसका जो हार्ट रेट होते हैं उसका 50% से लेके 60% तक जो हार्ट रेट में अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा तो उसका वार्म अप, कूल डाउन, रिकवरी ऐसी चीजों को हम कर सकता है। मतलब ऐसे जो भी छोटा सा इंटेंसिटी का हो, मतलब खाली उसका आपको पता है कि वार्म अप करते वक्त हम ज्यादा तो इंटेंसिटी नहीं देते, ज्यादा एफर्ट नहीं डालते, धीरे धीरे हमारा शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए तैयारी करते, तो जहां हमारा इंटेंसिटी कम होता, जैसे ही अपना जो एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी है लिए तब भी हम ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहता, ज्यादा प्रयास नहीं रहता, तो तब भी क्या करना चाहिए 50 से लेके 60% तक हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट में एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे अगर आपका इंटेंशन है कि एक बंदा आपका पास आया है
उसका अभी छुट्टी करके आया है, उसको बेसिक एंड्योरेंस कराना चाहिए। तो पहले उसको बेसिक एंड्योरेंस बढ़ा दे, उसके बाद हम बाकी सारे ट्रेनिंग कर देंगे। तो उसके लिए तो कितना लेना चाहिए, 60% से लेके 70% तक। तो अगर कोई व्यक्ति अपना जो मैक्सिमल हार्ट रेट रहते हैं उसका 60% से लेके 70% तक उसके बीच में हार्ट रेट बीच में काम करेंगे, तो नहीं, ये तो एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा, उसका बेसिक एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। और उसके ऊपर जाएगा तो 70 to 80% में जाएगा तो उसका एरोबिक एंड्योरेंस, मतलब एंड्योरेंस का और एक स्टेज एरोबिक्स एंड्योरेंस बढ़ जाएंगे। जैसे इसका 80 to 90% मैक्सिमम हार्ट रेट के 80% से लेके 90% वो जोन में काम करेंगे, तो क्या होगा, उसका अनेरोबिक कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा। और 90% से लेके 100% तक करेगा तो उसका स्पीड नहीं है, तो जितना भी उसका अनेरोबिक पावर है वो बड़ी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे देखते वक्त अभी हमारा एक आइडिया मिला है, जितना भी हमारा जो हार्ट रेट है उसको लेके हम बहुत सारे से जोन बनता है। जोन 1 मतलब 50 to 60%, वो उसके लिए एक पर्पस रहते नहीं है, तो वो करेगा तो एक बेनिफिट रहेगा। जोन 2 में आएगा तो 60 to 70%, उसमें तो एंड्योरेंस बढ़ जाएगा, बेसिक एंड्योरेंस। जोन 3 में 70 to 80% में करेगा तो हमारा एरोबिक एंड्योरेंस नहीं है, तो एंड्योरेंस जो होते हैं वो बढ़ जाएगा। और जोन 4 में करेगा तो 80 to 90% ऑफ हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट में करेगा तो अनेरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जोन 5 में वो हम उसका मैक्सिमम एफर्ट रहते हैं, अगर उसमें करेगा तो उसका अनेरोबिक पावर बढ़ जाएगा। तो एक ही एक्सरसाइज नहीं तो एक ही ट्रेनिंग, अगर हम चुनने का जो तरीका डिफरेंट है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी अलग होगा। जैसे अभी एक 40 साल उम्र का एक आईटी प्रोफेशनल जिसका ज्यादा फिटनेस नहीं है, वो आपके पास आके बोलते मेरा बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं है, तो मेरा जो पेट ज्यादा बाहर निकला है, मेरे को अभी इसको मैनेज करना चाहिए। इसको सही करने के लिए आप मेरे को कोई एक्सरसाइज बोल देना। आप खाली उसको बोलते हैं कि जॉगिंग कर लो। जॉगिंग धीरे करेगा तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट भी कम रहेगा। तो एक दिन वो गया जॉगिंग करके वापस आया, बोला कि मैंने जैसे आपने बोला 15 मिनट्स के लिए जॉगिंग किया, लेकिन 15 मिनट्स खाली करने से क्या नहीं होता, उसका कोई शरीर में फैट बिल्ड नहीं होता। क्योंकि ये जैसे हमारा सोन में देखते वक्त खाली वो व्यक्ति अपना जो मैक्सिमल हार्ट रेट है उसके 60 to 70% लेके वो जो हार्ट रेट के बीच में रहेगा, तो ही उसका इंटेंसिटी फैट बर्न करने के लिए तैयार होगा। वो धीरे धीरे भागेगा तो 50-60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में भागेगा तो उसका शरीर में उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। और जैसे ही वो बोलते हैं कि सर मेरे को बोला कि 15 मिनट्स जॉगिंग करो, मैंने क्या कर दिया, जाके भागा, बहुत तेज भागा, लेकिन मेरे को 15 मिनट्स तक कर नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो टारगेट हार्ट रेट है उससे बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया, इसलिए उसको अपना जो ट्रेनिंग जो हमने बोला उसको अचीव नहीं कर पाया। इसलिए हमारा जो टारगेट क्या होते हैं नहीं है, तो हमारा जो बेनिफिट क्या रहना चाहिए उसके हिसाब से सही तरह से एक हार्ट रेट का एक जोन वो चुनने का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे हमने अभी बोला, यहां मैंने अभी एक दिया है एक एग्जाम्पल। तो हमने बोला था किसी का हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे एस्टिमेट करना है। अभी आप देख लीजिए, यहां मैंने दिया है आकाश करके एक बंदा आया है मेरे पास, उसका उम्र है 18 इयर्स का और हाइट है 173। देख सकता है सर? हेलो सर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है मेरा मोबाइल में। ये दिखाई दे रहा है सर? दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ हाँ ओके, दिखाई दे रहा है। शायद आपका प्रॉब्लम होगा, सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे को नहीं तो दिखाई देता। तो आप देख लीजिए, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक बच्चा का जो उम्र है 18 इयर्स का, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट भी दिया है 54, मतलब उसका लेटते वक्त सुबह फ्रेश होके लेटते वक्त उसका हार्ट रेट था 54।
अब इससे हम उसका मैक्सिमल हार्ट रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका बेसिक उम्र था 18, तो 18 को क्या करना चाहिए था, 220 से हमने उसको रिड्यूस कर दिया, तब उसका हार्ट रेट हमें मिला कि 202, मतलब 220 से जब इसका जो उम्र है 18 साल का, उसको जब कम करेंगे तब हम उसको मिलेगा उसका मैक्सिमल हार्ट रेट कितना हो सकता है। अभी हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो आकाश का मैक्सिमल हार्ट रेट हो सकता है 202, ठीक है। अभी ये आके मेरे को बोल रहा है कि सर मेरे को मेरा जो बेसिक एंड्योरेंस है, मैंने अभी छुट्टी करके आया है इसलिए मेरे को मेरा बेसिक एंड्योरेंस इंक्रीज करना चाहिए। तो जैसे हमने इधर बोला, अगर उसका बेसिक एंड्योरेंस इंक्रीज करना है तो क्या चाहिए, हमें जोन 2 में काम करना चाहिए, जहां हमारा हार्ट रेट 60 और 70% के बीच में रहना चाहिए। तो 60 और 70% में रहना चाहिए, तो क्या करना है, हमें अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका हार्ट रेट का 60% कितना रहेगा और इसका जो हार्ट रेट का 70% कितना रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा स्टेप है कि जो हमने नीचे जो दिया है, ट्रेनिंग जोन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमने नीचे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा कैसे करना है। अभी हमने बोला, हमने चुना है हमारा हार्ट रेट कितना होना चाहिए, जितना अभी 60% से लेके 70% तक होना चाहिए। उसको ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा। इसके हम करते हैं, जैसे हमने अभी मैक्सिमल हार्ट रेट होते हैं, उससे हम पहले क्या करना चाहिए, हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट उसको कम करना चाहिए। जब हमारा मैक्सिमल हार्ट रेट जो हमने बोला था, जो 220 से 18 जो आकाश का हार्ट रेट है उसको जब कम किया हमें मिला 202, वो उसका क्या हो गया, वो उसका मैक्सिमल हार्ट रेट हो गया। अभी जो मैक्सिमल हार्ट रेट 202 रहते हैं, उससे क्या करना चाहिए, उससे पहले हम उसका रेस्टिंग हार्ट रेट जो 54 है उसको कम कर दीजिएगा। तो कम करते वक्त हमें मिला 148, ये पहला स्टेप है। सो पहले हमने 220 से उसका उम्र जो 18 था उसको कम कर दिया, जब जो चीज मिला उसको हम कहा जाता है हार्ट रेट रिजर्व। इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, हियर नहीं है, हार्ट है, हार्ट रेट रिजर्व। तो हार्ट रेट रिजर्व जो होते हैं यहां कितना है, 148। वो हार्ट रेट जो 148 रहते हैं, इसको अभी क्या करना चाहिए, इसको हम लेके हमारा जो परसेंटेज है उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला जो 202 था उसका मैक्सिमम हार्ट रेट, उसने जब हमने जो 54 जो उसका रेस्टिंग हार्ट रेट था उसको कमी कर दिया, जो येलो कलर में दिखाया है, ये येलो कलर में जो दिखाया है ये इसका हार्ट रेट रिजर्व जो हमें मिला है इधर 148। अब इसको क्या करना चाहिए, इसका 60% हम कैलकुलेट करना चाहिए, इसीलिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से, मतलब 60/100 जब करेगा हमें मिलेगा 0.6, उससे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा उसका जितना परसेंटेज जो आते, और उसके साथ फिर जोड़ना पड़ेगा हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट फिर। तो इसलिए जो 148 मिल गया हमारा हार्ट रेट रिजर्व, जिसको हमने मैक्सिमल हार्ट रेट से रेस्टिंग हार्ट रेट जब कम किया हमें मिला 148। अभी इसको जहां हमने हमारा ट्रेनिंग जोन इधर चुना है 60 से लेके 70, तो पहले हम कैलकुलेट करते 60% कितना होगा। तो वो 60% कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं 148 जो उसका हार्ट रेट रिजर्व मिला उसका 60% कैलकुलेट किया, वो जो हो गया 88.8। अभी फिर उसके साथ हम रेस्टिंग हार्ट रेट और एक बार ऐड करेंगे, तो हमें मिला 142.8। इसका मतलब है अगर हमें 60% से लेके 70% तक उसको ट्रेनिंग आज करना चाहिए, तो उसका हार्ट रेट एक्सरसाइज करते वक्त 142.8
तो बीट होते वक्त क्या होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते, इसलिए हमने उसको होल नंबर करके लिया 143। तो होते इसका मिनिमम हार्ट रेट रहना चाहिए 143। अगर उसका हार्ट रेट 143 के नीचे जाएगा तो उसका जो इफेक्ट आएगा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी हमें उसका एस्टिमेट करना चाहिए कि उसका 70% कितना रहते हैं। सेम अभी देखते वक्त जैसे हमने बोला 70% कैलकुलेट करना चाहिए, तो का हार्ट रेट हो गया 70%। उसको सेम जैसे हमने बोला मैक्सिमम हार्ट रेट जो था तो 202 हो गया, क्योंकि 220 से 18 साल का उम्र का बच्चा है, जो कम करते वक्त हमें मिला 202। उससे जब हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट जो 54 है उसको जब हमने रिड्यूस कर दिया तब हमें मिला उसका हार्ट रेट रिजर्व। वो हार्ट रेट रिजर्व था 148। अभी 148 का 70% एस्टिमेट करने के लिए क्या करना है, 0.07, सॉरी इट इज नॉट 0.07, इट इज 0.7। 0.7 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब मिलेगा 103.6। 103.6 के साथ अभी उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो रेस्टिंग हार्ट रेट 54 है, उसको ऐड करना। वो ऐड करते वक्त हमें मिलेगा 157.6, जो भी उसको हम राउंड ऑफ करके 158 डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब है अभी जो हमने उसको ट्रेनिंग देने वाला है उसका हार्ट रेट अगर 60% से लेके 70% तक रहना चाहिए तो क्या होना है, उसको हार्ट रेट 143 से लेके 158 तक रहना चाहिए। अगर इसका हार्ट रेट 143 के नीचे जाएगा तो उसका जो हमने एक्सपेक्ट कर रहा है रिजल्ट, मतलब उसका जब भी एंड्योरेंस बढ़ाना है, बेसिक एंड्योरेंस, वो बढ़ नहीं सकता क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम हो गया। कम इंटेंसिटी में काम करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे हो गया 70% है 158, अगर 158 के ऊपर उसका हार्ट रेट हो जाएगा तो क्या होगा, अभी बेसिक एंड्योरेंस नहीं बढ़ जाओगे, इंटेंसिटी ज्यादा होने से उसका ऊपर एडवांस एंड्योरेंस तक वो पहुंच जाएगा। उसका मतलब है ये बंदा उसको उतना इंटेंसिटी में काम कर नहीं सकता, वो बीच में थक जाएंगे। तो इसलिए सही तरह से इसका जो हमने हमारा इंटेंशन है, नहीं तो हमारा जो एम होते हैं इसी हार्ट रेट के अंदर, इसी जो हमने जो बोला उसका फैट बर्न करना चाहिए, नहीं तो उसका एंड्योरेंस, बेसिक एंड्योरेंस बढ़ना चाहिए, तो हम इसके 60% और 70% अभी हमने जो कैलकुलेट करके रखा है इसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ऊपर नहीं तो ज्यादा नीचे हो जाएगा तो अगर वो कम इंटेंसिटी में हो जाएंगे तब हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ऊपर हो जाएगा तो जो हमने ट्रेन करने के लिए सोचा था वो क्वालिटी नहीं बढ़ेंगे, कोई और क्वालिटी बढ़ जाएगा, तो हमारा जो एम होगा वो गलत हो जाएंगे। आजकल इसको मॉनिटर करने के लिए हमारा बहुत सारे तरीका है। इसमें सबसे यूजफुल और सबसे यूज करने वाला जो हमारा तरीका है यही है, ये हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग। ज्यादातर जैसे मैंने बोला, ज्यादातर हमारा जो फील्ड बेस्ड जो भी काम हो, जो भी एक्सरसाइज हो, उसको सबको ऐसे कर सकता है। जैसे अगर कोई बास्केटबॉल का ट्रेनिंग करते वक्त हम उसको कोई ड्रिल देते, वो ड्रिल के समय अगर हमने उसका हार्ट रेट देखते वक्त क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसका हार्ट रेट कितना बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी इसको एक फुल कोट लेयर बोला, तो वो फुल कोट कंटिन्यूसली लेयर करते रहते, तो मैं उसको बोल देते हैं कि अगर हमारा एडवांस एंड्योरेंस बढ़ाना है तो उसको 70 to 80% के अंदर रहना चाहिए। तो उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया तो मैं उसको बोलेगा आपका जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करो, क्योंकि मैंने पहले बोला स्पीड बढ़ने से हमारा जो एफर्ट नहीं है तो हम जो प्रयास करते वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा प्रयास मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, तो उसको नीचे करने के लिए क्या करना है, आप खाली अपना स्पीड थोड़ा कम कर लो, वो हमारा इंटेंसिटी को नीचे खींचेगा, जैसे हमारा हार्ट रेट सही जोन में रहेगा। जैसे उल्टा, अगर वो बहुत ढीला नहीं तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे
अपना हार्ट रेट सही तरह से नहीं होते, इसलिए आप थोड़ा सा तेज बढ़ाइएगा। तेज बढ़ाने से क्या होते है, अपना जो प्रयास नहीं है तो उसका इंटेंसिटी वो बढ़ जाते, तो वो सही हमारा जो सोन होते उसके अंदर आ जाएंगे। इसके हिसाब से हमारा जो इंटेंशन है नहीं है तो उसका जो हम इंप्रूव करना चाहिए वो क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो आई थिंक आज जो हमने डिस्कस किया था हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग, हार्ट रेट को ट्रेनिंग में सही तरह से हमारा जो भी इंटेंशन है उसको अचीव करने के लिए हमें ये तरीका है कि हमारा इंटेंसिटी को कैसे मॉनिटर करना है हमारा हार्ट रेट को लेके। तो सर अभी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं देख लेता हूं सर। सॉरी, थैंक यू सर। अभी इस सेशन ओपन करेंगे। पहले फीडबैक और सजेशन के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा। सर, आपका जानकारी के लिए बताता हूँ, इस एपिसोड में उपस्थित है फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार बनर्जी सर, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर सुब्रत मौलिक सर, प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर, फॉर्मर प्रोफेसर जादवपुर यूनिवर्सिटी। मैं सभी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले फीडबैक और सजेशन के लिए प्रोफेसर आलोक बनर्जी सर के पास आऊँगा। सर, अनम्यूट करके आप कुछ सजेशन और फीडबैक रखिए प्लीज। At the very outset, I appreciate the presentation of Dr. Sudhish. This is because the physiology is the basis of physical education. And in many spheres, the principles of physical education are being adopted from the very basic principles of physiology. So that way, and one formula for this type of lecture I have mentioned, and the college authority is well aware of that. That is, it should be outside of the syllabus, not included entirely on the syllabus, but it is something add-on to the existing syllabus. That way, your lecture was appropriate, and the very nature of training, and that is the physiological basis of training which you have discussed with them. This sort of idea should be there for each and every physical education teacher. Generally, I used to ask one question, that why warm-up is there? What is the reason to have warm-up before a class? That is also a physiological basis. Similarly, particularly the target heart rate which you have discussed, and the maximum heart rate and the target zone that you have discussed, I hope if the students they could understand properly, I hope that will be a benefit for them. Only one precaution that I suggest, that your formula, that is 220 minus h, probably this is for well-trained person. Otherwise, it is very difficult for an untrained or the such type of trained, those who are in the physical education profession mostly. Say 90 or 80% of the physical education training in the BP8 courses are of not that level where they can increase heart rate beyond 180. Anyhow, so this is a good approach, and that is the to make the students or those who are listeners to this relating to our profession. Definitely, I'm sure they have been benefited. They will remain benefited if they continue to think of
the basis, physiological basis of. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for your kind words. Thank you so much. सर को चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सुब्रत मौलिक सर को। सर आप अनम्यूट करके कुछ शब्द कहें। Good evening, everybody. Am I audible? ओके Hello. सर, ऑडियो। Yeah. Good evening, everybody. It's a pleasure to hear from Dr. Shudesh about the physiological part of the functioning heart. And I think heart is a very important thing. And that had to be taken well care of. So there are a lot from my sports medicine desk, as I'm a medical person, a doctor. I feel one particular thing, what I felt when I was serving in Sports Authority of India also. The thing is that they are for the heart part, heart rate and other things. First of all, we have to go to that basic part, the condition of the heart, the circulatory part, whether there is any anomalies, any problems. There may be anomalies like congenital anomalies. By birth, there may be some problem. There may be ectopic beats of the heart. So you are talking about the heart rate. Suppose somebody has got an ectopic beats in the heart. There, the system is different. That sometimes we used to cover in such a way, tell the coaches that you should not make this particular person go to that level of maximum heart rate, exercise heart rate, I mean, because that may cause some problems on the field also itself during exercise. It's a very, very important thing. And regarding that particular thing, there should be a proper ECG had to be taken. ECG is a very important thing, electrocardiogram and echocardiogram. ECG is the electrical impulses which is causing the particular contraction of the atrium, the ventricles and all those things by the neurocardiovascular system. That is the neurocardiac system. So that is important. And we have to see the valvular part of the sports persons, right, from the young age, whether there is any valvular defects are there, right? The mitral valve, the tricuspid valves and other valves, aortic valves, these are very important to be found out, because lots of these accidents have occurred on the field itself. Even in Sai also, once it happened that athletic coach, he also during demonstration, he expired, he got an heart attack on the field itself. And you know, there are certain one particular Brazilian footballer who he came to Calcutta. I think he was playing with the East Bengal team, I think. Yeah, football team. He was taken, and he got a dash with the goalkeeper. That is Mohun Bagan, East Bengal. That type of yes, that football is going on, and you know the football. We are in Bengal. We are very much crazy with the football sports. So during that clash, that particular player died, and one particular thing has happened that at that point only, that footballer got unconscious like, and after getting unconscious, he just collapsed on the field itself. And at that time, there are plenty of, the
ambulance was there, everything was there. But the problem is that we have got a particular system in medical. If there is a stoppage of heart by some type of shock, sometimes it happens. So the neurocardio system, the heart, the nerve system, if it comes in a shock, suddenly it stops. The impulses get stopped. At that time, a particular thing is that the CPR, cardiopulmonary resuscitation, is very, very important. And that should be taught to each and every student also. If somebody has got a shock and you cannot get a pulse, carotid pulse, the carotid pulse is also missing. That is the best level to find out. That pulse is most important, which is supplying the brain, the carotid artery, that pulsation. And the respiration is also stopped at cardiac and cardiorespiratory failure, you can say, at that time. So at that time, the CPR, the cardiopulmonary resuscitation, that is the cardiac massage, we used to say like that, at a common term, like that had to be known by each and every physical education going students, how to do it, how to perform it, because anybody can face that particular problem regarding his friend, some players, or even his family members also. It's a part of first aid life. So these things are very nowadays it is coming under importance, but people sometimes neglect these particular things. I think this should be taken well care of. And one had to find out through ECG, echocardiogram, for a sports person, whether he is okay with his heart fitness, cardiac fitness or not. So that is what I want to say. I think this is a very important thing. Thank you very much for your nice deliberation about this functional physiology. That's very nice. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, sir. धन्यवाद, प्रणाम सर आपको, आपका मूल्यवान शब्द रखने के लिए धन्यवाद सर। अभी मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन कर रहा हूँ। किसी का मन में कोई शंका है तो अनम्यूट करके डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर के पास अपना प्रश्न रख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई भी शंका है तो प्लीज अनम्यूट करके आज का मुख्य आलोचक के पास प्रश्न रखें। चैट बॉक्स में है क्या कुछ? अभी तक चैट नॉट चेंजिंग, चैट बॉक्स से में कोई क्वेश्चन नहीं है सर। एक टर्मिनोलॉजी आपने बताया था ब्रैडिकार्डिया और उसके बारे में जो टर्मिनोलॉजी बोले थे, एक बार और बोल दीजिए सर प्लीज। हमारा स्टूडेंट का क्वेरीज था उस टर्मिनोलॉजी। ठीक है सर। सर जैसे अभी हमारे जो मलिक सर ने बोला, आई 100% एग्री विथ मलिक सर, क्योंकि जैसे सर ने बोला हमारा जो एथलीट नहीं है तो हमारा सामने जो क्लाइंट आ रहा है फिटनेस के लिए, हम ऐसे फिजिकल एजुकेशन लोगों का एक छोटा सा एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें बहुत सारे एक्सरसाइज पता है, लेकिन जो भी एक्सरसाइज हमें पता है वो सीधा उन लोगों के ऊपर लगाने के लिए वो कोशिश मत करना। पहले हम क्या देखना चाहिए कि उसका मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो जो उसका जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो वो कोई है नहीं, उसको हम पहले रूल आउट करना चाहिए। जैसे मलिक साहब ने बोला कि उसका कोई वाल्व का कोई कंप्लेंट हो। हमारे इधर एक एथलीट था, जैसे सर ने राइटली पॉइंटेड आउट, एक एथलीट था जो एंड्योरेंस रनर था, 1500 मीटर्स के लिए यूनिवर्सिटी मेडल भी लाया था, लेकिन उसका वाल्व का एक कंप्लेंट था। वो बाद में जब उसको कोई सर्विसेज में, पुलिस में कहीं कोई सर्विसेज में जब उसका सिलेक्शन हुआ, तब मेडिकल में पता चला कि इसका हार्ट का एक प्रॉब्लम है। वो मेडिकल प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने इतना ट्रेनिंग करके उसको लिया था, लेकिन तब हमारा मेडिकल प्रोफेशनल उनको बोला कि आपने इसको
उसका जानलेवा वाला एक काम करवा दिया था अभी इतना साल तक, तो पहले हमें उसको रूल आउट करना चाहिए था। लेकिन वो एथलीट भी ऐसे एक बैकग्राउंड से देखी उसको एथलेटिक्स करके कोई नौकरी मिल सके, उसके लिए उन्होंने इसको छिपा के रखा। तो हम बहुत रिस्क ले रहे हैं अगर आप सीधा जाके उस पर ट्रेनिंग देते हैं तो इसलिए क्या करना चाहिए, बेसिकली पहले उसका जो भी हिस्ट्री हो, नहीं तो फिजियोलॉजिकल बेसिक टेस्ट हो, उसको पहले देखना ही चाहिए। अभी सर ने जो क्वेश्चन पूछा जो ब्राडीकार्डिया के बारे में, ब्राडीकार्डिया भी ऐसे ही होते हैं। ब्राडीकार्डिया होते हैं जो हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट हमने जो बोला 60 to 72, नहीं तो 60 to 75 तक हो जा सकता है, वो जो नॉर्मल हार्ट रेट रहते हैं उससे जब कम रहते हैं रेस्टिंग टाइम में 60 से नीचे, उसको हम ब्राडीकार्डिया कहते जाता है। ब्राडीकार्डिया का और एक नाम है, हमने जो आर्दिमियास करके कहा। आर्दिमिया मतलब क्या होता है ना सर, रिदमिक जो सही रिदम में नहीं चलते हैं तब उसको हम आर्दिमिया कहा जाता है। तो ब्राडीकार्डिया ऐसे होते हैं, जैसे सर ने बोला जो हमारा जो एसए नोड एवी नोड सब करके हमारा हृदय के अंदर जो हमारा जो हृदय का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो करने वाला सिस्टम हो, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं है तो हमारा जो हार्ट रेट, हार्ट का साइज बढ़ने से भी वो हो सकता होता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी दो है, अगर हमारा कोई डिसीज के वजह से भी ये हो सकता है, नहीं है तो क्या हो सकता है, उसका ट्रेनिंग करते करते उसका ये हार्ट का साइज बढ़ गया। तो इसीलिए ब्राडीकार्डिया को सब समय हमें क्वालिटी ही कर नहीं सकता, कभी कभी वो डिसीज भी हो सकता है, तो इसलिए देख के करना चाहिए। और दूसरा चीज हमारा जो मलिक सर ने बोला था कि ये नहीं हो देखते तो क्या होगा, जैसे हमारा सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फिटनेस करने के लिए बैडमिंटन खेलने जाते, बैडमिंटन खेलते वक्त वो कोलैप्स होकर मर जाते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसका हृदय का कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन वो फिटनेस कॉन्शियस दे, उसके हिसाब से उन्होंने जाके खेला, वो मर गया। ऐसे ही हम हमारा जो फिल्म स्टार दे पुनीत राजकुमार, वो बहुत फिट दे, जिम में एक्सरसाइज करते वक्त वो भी कोलैप्स हो गया, वो मर गया। मतलब उसका भी हमारे जो बाहर देखते वो मसल नहीं तो बाहर के जो फिटनेस वो सब कोई गारंटी नहीं कि हमारे जो अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं उसका क्वालिटी हमें इक्वल नहीं कर सकता। इसीलिए ये भी थोड़ा मानना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में सर अगर हमारा कोई फिटनेस इंडस्ट्री में पर्सनल ट्रेनर करके जाते हैं तो वो लोग पहले बार पूछ लेते हैं, अगर इसका कोई गड़बड़ हो गया, एक्सरसाइज करते हुए उसका कोई इंजरी हो गया, तो उसको मैनेज करना भी आपको जानना चाहिए, नहीं है तो यू विल नॉट बी परमिटेड टू टच। इसलिए सबका मैंडेटरी है, आप फर्स्ट एड नहीं तो सीपीआर का कोर्स करना ही है। तो हमारा एक स्टूडेंट गया था यूके में, वो जो काम कर रहे हैं अभी एसएनसी एक्सपर्ट करके, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट करके, उसको उधर जाके करना पड़ा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से सीपीआर का कोर्स, और उसको करना पड़ा कि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से फर्स्ट एड का कोर्स, क्योंकि उनका भी यही है, अगर किसी को आप एक्सरसाइज देख के हो तो उसका कोई दिक्कत आ गया तो उसको मैनेज करने के लिए तुरंत हमें कोई डॉक्टर को ला नहीं सकता, तो बेसिक जो फर्स्ट एड है हमें ही देना पड़ेगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा इक्विप करना ही चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. Sir, just like bradycardia, another one term is trachycardia. हाँ, यस सर, टकीकार्डिया, वो भी ज्यादा हमारा जो हार्ट रेट इलेवेट हो जाता है ना सर, 90 से ऊपर जब रहते हैं उसको हम टकीकार्डिया कहा जाता है सर। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय दास सर को और सर को भी अपना मन का जो जिज्ञासु मनोभाव है सर ने रखा है, और आज का डिस्टिंग स्पीकर उसका मन का शंका दूर किया है। सॉरी, अभी मैं अंतिम चरण में जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है। एडवाइजरी कमेटी की सजेशन के हम लोग बीच में लेते लेते चलते हैं। जैसे एडवाइजरी कमेटी का सजेशन आया था उस हिसाब से हम लोग 1 से 10th एपिसोड में हर एपिसोड में एक स्पीकर और एक चीफ गेस्ट रहता था। बाद में एडवाइजरी कमेटी का सजेशन लेने के बाद हम लोग को चीफ गेस्ट का खत्म कर दिया था, बंद किया था। बीच में 50 एपिसोड 51, 52, 53, 54 एपिसोड में चीफ गेस्ट हम लोग लाए थे, बट
इसको फिर से 90 एपिसोड तक 75 एपिसोड ओनली स्पीकर थे, ताकि ऑनलाइन मोड में, ताकि ज्यादा बोरिंग ना हो। लेकिन हमारा जो टारगेट है, इस टारगेट के अनुसार फिर से 90 एपिसोड से 100 एपिसोड तक हम लोग फिर से एक बार चीफ गेस्ट ला रहा हूँ, और ये हम अगले एपिसोड से होने वाला है, इसलिए आज इसका जानकारी हम सभी को देता हूँ। अभी मृत्युंजय सर को रिक्वेस्ट करेंगे आज का वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। डॉक्टर वोट ऑफ थैंक्स देने से पहले एक छोटा अनाउंसमेंट है। हमारा जो 90th एपिसोड है, उसका जो स्पीकर है डॉक्टर एमएल कमलेश सर, renowned physical educationist in our country. So I am request all of you please join in 90th episode. Thank you सर। उस एपिसोड में चीफ गेस्ट है प्रोफेसर ओलक बनर्जी सर। Thank you sir. So this is a very important task for me to giving vote of thanks to Dr. Sudhir sir. Sir, first of all, I have convey my deeply gratitude to you, and we are deeply grateful for the insightful talk you delivered on heart rate based monitoring of training load, a pragmatic physiological approach in the 89th episode of Alabon. Your expertise and passion for the subject shown through providing our audience with a comprehensive understanding with this vital topic. Thank you for your valuable contribution to the field of sports science and for inspiring our audience, our students and delegates to explore the intricacies of heart rate based monitoring. We wish you continued success in your endeavors and look forward to future collaborations. Thank you once again, sir. এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকে এই 89 যারা উপস্থিত আমাদের প্রথম আলোচক এবং আমাদের এই সুস্থ দেহ সুস্থ মনের যিনি সবচেয়ে আমাদের কাছের মানুষ অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয় আছেন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত, অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার, ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার সহ শারীর শিক্ষা এবং ক্রীড়াবিজ্ঞান জগতের সমস্ত গুণীজনদের আলাপনের 89তম পর্বের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বৃন্দ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমাদের চলার পথকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। সকলকেই আমি আরো একবার যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে আমি শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো যাদের জন্য আমাদের অনুষ্ঠান, আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স, আমাদের স্টুডেন্টস, আমাদের শিক্ষার্থী, যারা ছাড়া আমাদের এই প্রোগ্রাম অচল, সেই সমস্ত শিক্ষার্থীদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং পরিশেষে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এন্টায়ার টিমকে, মহাবিদ্যালয়ের আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডক্টর কেশব চন্দ্র গোপ স্যার, আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর অলোক সেন বর্মন স্যার, ডক্টর নিতু দত্ত ম্যাম সহ যারা আমাদের এই আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, সকলকেই আমাদের এই আলাপনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সমস্ত শুভানুদ্দেয়ী ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে, 90তম পর্ব, যেখানে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ভারতবর্ষের শারীর শিক্ষা জগতের অন্যতম একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং লেখা বই আমরা সবচেয়ে বেশি পড়ি আজকের দিনে নেট সেটের জন্য, ডক্টর এমএল কমলেশ স্যার। তিনি আমাদের সঙ্গে 90তম পর্বে থাকবেন আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়, প্রাক্তন উপাচার্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি আমাদের যার হাত ধরে আমাদের আলাপনের পথ চলা শুরু হয়েছিল। সকলকে আরো একবার আমন্ত্রণ জানিয়ে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন শেষ করছি। নমস্কার। একটা কথা বলার ছিল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Line of vote of thanks should be in English or Hindi, so that the speaker should understand that vote of thanks has been extended to him also. Please do it. থ্যাংক ইউ স্যার, পরের সপ্তাহ থেকে করবো স্যার এটাই। সরি স্যার। Today itself you should. No, Dr. Sudhir must know that the thanks has been extended to him also, because you have spoken in Bengali only. You understand, Mrityunjay? হ্যাঁ স্যার, You offer your vote of thanks in the name of Dr. Sudhir.
in English or Hindi. That's my point. You have স্যার spoken স্যার আমি in Bengal. স্যার উনারটা ইংলিশেই বলেছিলাম, তারপরে আপনাদের থেকে বাংলায় বলেছি। Okay, okay. Thank you. Then. থ্যাংক ইউ স্যার। সবাইকেই আরো একবার যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ডক্টর সুধীর স্যার ফর ইউর কন্ট্রিবিউশন ইন আওয়ার আলাপন 100-week lecture series. Thank you, sir, and thank you all. Good night all. Thank you, sir. Thank you all. Thank you.